Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Yes, in UPSC Civil Service Mains Examination preparation, toppers copy are the most enriching, the most valuable, and the most underrated content when it comes to writing the UPSC Civil Service Mains. In fact, I will go on to say this that these toppers copy are the gateway to your selection, are the gateway to you getting very good marks in mains, and the gateway to you getting a very top rank. And 99% of the UPSC aspirants read the toppers copy but they read it in the totally wrongful manner, बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं, right? And in this particular video I will tell you the exact method that needs to be followed when it comes to analyzing the toppers copy. Before that, if you want to study live answer writing plus value addition in PSIR optional, then you are most welcome to join our crash course where we are every day having live classes in 3200 rupees from the given link in the comments. So let's begin our discussion and let's directly take a topper copy to analyze what I am trying to say. So here is the topper copy of AIR 1, right? This year's AIR 1, right? Aditya Srivastav. Now, the very first thing what aspirant do, right? They go and download this topper copy and then they read the question and then they read the answer, right? कुछ और लोग what do they do is that they somehow make some notes out of it, which is good, right? But both of these activities are useless if first and foremost if you haven't brainstormed those questions. That is, whenever you see a topper copy, whenever you see the question, don't directly jump to the answer. Answer सीधे ही पढ़ लेंगे, ये गलत है. पहले you need to brainstorm the question in your head. Why I am saying this is that then only will you be able to relate to कि whether are you at the same level of thinking as that the topper. नहीं तो पता है क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते, आंसर पढ़ लेते, तो हमारा दिमाग नहीं काम करता. आवर ब्रेन डजंट वर्क, एंड व्हेन आवर ब्रेन डजंट वर्क, देन माय डियर फ्रेंड्स, इन एग्जाम व्हेन क्वेश्चंस कम टू अस, then what do? We suddenly go blank, and as a result we write casual, shabby, below the average answers, and as a result we get hardly 75-80. This is what we score in paper, right? But have you ever thought that yaar, how come some toppers are scoring 120, right? In almost all the papers 110, 120, 100, right? ऐसा क्या कर रहे हैं यार? And why most of the audience lies in this 60, 70, 80, 85 वाली range? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, right? The reason is this, because toppers copy सब पढ़ रहे हैं. Everyone is reading the topper copy, but everyone is not doing it in a right manner. So first step is to think कि what should be the answer to this question, what should be the intro, what should be the conclusion, what should be the body structure look like, right? Whether I'll write pro, whether I'll write cons. This is how exactly you need to think on these lines, right? For example, let us take this question of the Cologian system has been a victim of its own success with concentration of power in the hands of few, leading to question about its legitimacy. Comment, right? You need to answer in 2 pages, 150 words, 10 marker, right? So first step क्या होना चाहिए कि भाई what will I write, right? And simply don't read the answer, just think in your mind. This is what is called as mental answer writing, right? Mental answer writing कैसे करें? तो सोचो भाई कोलोजियम सिस्टम पे आया तो what is the theme? The theme is colloquium system. This is how I think. So I'll try to define the colloquium system, or I'll try to write colloquium system कैसे originate हुआ, right? This is how you do. Define, you type, give some data, you give some origin, right? Dodd model, ठीक है? तो इसमें आप origin दे सकते हो, right? For example, this topper has given the origin through the 3 judge cases, right? If you cannot give, then you can simply define, right, that the Cologian system consists of judges, right? Consists of 5 judges of the Supreme Court whose main responsibility is to what? Is to appoint, is to recommend names for appointment as well as transfers to the Supreme Court and High Court. इस तरीके से आप बता सकते हो, right? This is what the main idea. आपने Cologian system को define कर दिया, ठीक है, right? Cologian system को origination बता दिया, Cologian system पे कुछ data दिखा दिया, ठीक है, ये चीज़ 1. Then what you need to think is कि how it is becoming a victim. मैं इसके बारे में 4 पॉइंट लिखूंगा. And then what? Should I just end it? ठीक है, no sir.
नाउ यू सी, इफ यू सी द टॉपर कॉपी, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट इट, ठीक है, बट अगर आप यहाँ टॉपर कॉपी एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि सर यहाँ देखिए, हाउएवर दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, एंड यू विल फाइंड टॉपर्स कॉपी से ये बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ होता है दैट टॉपर राइट बोथ द साइड्स ऑफ द आंसर, कि इसने यहाँ पे पहले ही गेव द 5 आंसर्स, 5 पॉइंट्स दे दिए इसने कि यस सर कि दिस इज हैपनिंग राइट प्रॉपर, एंड देन उसने 3-4 पॉइंट बता दिए, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट डज ही डू इज ही गिव्स द ऑपोजिट पॉइंट्स and he gives a way ahead as well, right? So if you can see this pattern he has followed in almost all the questions, in almost all the questions he has followed this. तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, think and then read. If you are directly reading without thinking, without doing any kind of brainstorm, trust me, you will be having a very tough time in mains exam. Second thing what people do wrong is that they just read the you can say topper copy, right? ठीक है, सोचा तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो बाद में, वो तो God will come, ठीक है, right? The second thing is they don't recognize a kind of pattern which people are following. And अगर आप यहाँ पे देखोगे, just see his all the answers, right? Let me show you from the first page, right? Now just see the first answer, right? You'll see, right? इसका structure देखो आप, pressure group पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, let's not read the question. Then he has broken down in the question, then इसने 3-4 पॉइंट लिखे, then second part को broken down किया, however से अगला वाला जो opposite point है, then pin point, then way ahead, right? So see, he is following a pattern, he is following a pattern like this. Third question में देखिए, right? Again, right? He has broken down the question, written the opposite part, and then written the way forward. See, अभी हमने कोलोजियम में देखा, right? This he has done, broken down opposite part, way ahead. देखा, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं टॉपर. This is what you need to see, and not only he, right? Let's take another topper, right? Let's take this topper, right? आपकी this I think Shushti Dabas, right? Just see. इन्होंने भी क्या करा है, राइट? यू विल फाइंड दैट शी ऑल्सो हैज डन एग्जैक्टली द सेम मैनर. दिस इज द इंट्रो, राइट? अगेन शी हैज ब्रोकन डाउन द क्वेश्चन, देन अगेन द सेकंड पार्ट ही हैज ब्रोकन डाउन द क्वेश्चन, राइट? ही हैज रिटन एंड देन कंक्लूजन. देखिए, राइट? शी हैज डन दिस, ठीक है, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न द आर्ट. कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, कैसे यहाँ पे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ना है, राइट? तो सेकंड चीज यू विल फाइंड, एंड सेम चीज अनिमेश प्रधान ऑल्सो इन हिज कॉपी यू विल फाइंड दिस, ठीक है? ये तो खैर एथिक्स की है, इवन इन द जनरल स्टडीज की आई हैव सीन हिज कॉपीज, इसी तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द टॉपर्स. व्हाट आर द पैटर्न्स जो ये फॉलो कर रहे हैं. यू विल फाइंड आंसर राइटिंग का ना, अच्छे आंसर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, राइट? बिकॉज दिस मेक्स द कॉपी ना वेरी चेकेबल, राइट? चेकेबल बना देता है कॉपी को, ठीक है? खट 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 एग्जामिनर के हाथ चलता है. और आप क्या करते हो? वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग इन सेम चीज. इट्स लाइक अ वन थिंग वन वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड, भसड़, ठीक है? दैट इज व्हाट वी डू. तो सबसे पहले आप ये समझो, एक पैटर्न को जो फॉलो किया जा रहा है, इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो. टॉपर्स कॉपी को अगर आप पढ़ रहे हो, जी हाँ यार ये सब ऐसा कर रहे हैं, या ये टॉपर ऐसे फॉलो कर रहा है, यू विल फाइंड दिस पैटर्न, ठीक है? थर्ड चीज जो ये काफी लोग करते हैं बट आपको भी करना है, इज टू टेक आउट द गुड डेटा, टू सी व्हाट इज दैट. याद है मैं जो हमेशा कहता हूँ, नोवेलिटी वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिकनेस सी चीज. फॉर एग्जाम्पल जैसे भगत सिंह पे क्वेश्चन आया था, राइट? एंड दिस डबास टॉपर, राइट? इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखिए यहाँ पे, राइट? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है, राइट? तो दिस एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो भगत सिंह की लाइन से स्टार्ट कर दिया. तो दिस इज व्हाट इज यूनिकनेस, जो आपको ऑलमोस्ट हर टॉपर दिखता है, राइट? यू सी अनिमेश प्रधान यहाँ पे, राइट? इन दी एथिक्स, राइट? ही हैज रिटन दिस लास्ट में, ये जो आपकी जॉन लेनिन एंड उनकी जो पोयम है, ठीक है, राइट? ठीक है, राइट? इमेजिन ऑल पीपल हैविंग ऑल द वर्ल्ड, ठीक है? यू कैन कॉल मी अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन, लेट अस वर्क टू अचीव दिस आइडियल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, राइट? तो इस तरीके से आप पोयम्स वगैरह देख रहे हो, तो ये सब पहले से प्लान करना जाता है. ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपने वहाँ पे बैठ के, राइट? द गॉड himself will come, right? You will have some kind of divine energy and then that energy will get transmitted into answers. It's not like that, ठीक है? That is why I say revolution happens not on YouTube, my dear friends. Revolution happens on your study table, ठीक है? तो प्लीज़ भाई इनसे इस पैटर्न को इस तरीके से करें, राइट? फोर्थ पॉइंट, right? Learn the art of writing short sentences.
यहाँ पे आप देखो टॉपर्स, कोई टॉपर मैंने नहीं देखा जो लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रहा है, राइट। सी कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस में, सी यहाँ पे जो इनका जो आंसर है, राइट, वन लाइन में शी इज ट्राइंग टू एंड द आंसर, एज मोदी जी सेड बुद्धिज्म कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ एंड स्तूपा एम्बॉडिफाइज इट। छोटे छोटे इंट्रो, छोटे छोटे कंक्लूजन। लुक फॉर दीज स्मॉल कीवर्ड्स जो आपको मिलेंगे। सी हाउ टॉपर हाईलाइट दीज कीवर्ड्स, राइट। इसके में यू विल फाइंड इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, यू विल फाइंड ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल फाइंड दैट टॉपर्स की कॉपी में आपको ये की वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो लर्न दिस आर्ट कि कैसे मुझे क्या करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये देखो टॉपर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, राइट, वो इसको अप्लाई कर रहे हैं। सी इंडिया नीड्स टू टैकल ऑल दीज थ्रू स्मार्ट पावर टू एंश्योर एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट। दिस इज हाउ यू नीड टू इंक्लूड दीज कीवर्ड्स। सी हाउ शॉर्ट सेंटेंसेस में की पॉइंट्स को मेंशन किया जा रहा है। बेसिकली आंसर राइटिंग नहीं है, ये नोट मेकिंग ही है, राइट। दैट इज व्हाई आई से योर आंसर इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स। अगर आपके नोट्स इस फॉर्म में बने हुए हैं, इट विल बिकम वेरी इजी टू रिप्रोड्यूस देम, ठीक है। सी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड, पॉपुलरली कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द साउथ। सी फार्मेसी ऑफ द साउथ को कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया, राइट। देन उसने फैक्टर्स पूछा था, फैक्टर बताए, ठीक है। सिग्निफिकेंस पूछा था, आई एम प्रीटी श्योर, देखो नेक्स्ट लाइन में इसने यहाँ पे सिग्निफिकेंस को ब्रेक किया, ठीक है। सी दैट, और सिग्निफिकेंस कैसे पूछा गया है, सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड्स टू इंडियन इकोनॉमी, विद रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ। ये देखिए, सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड्स टू इंडियन इकोनॉमी, सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ, ब्रोकन डाउन। देन कंक्लूजन विद स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, खत्म। देख रहे हैं, हेल्दी इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया। तो पहले से ये सारा का सारा चीज़ प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है, राइट। पहले से देखो यहाँ पे सोच के गए थे कि अगर साइक्लोन का पूछा जाएगा, मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा। इट इज डिराइव फ्रॉम द रूट टर्म कॉल्ड एज साइक्लोज, मीनिंग कॉइल्स ऑफ अ स्नेक आर द लो प्रेशर एरिया स्वर्लिंग अराउंड इन द सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल एक बता दूंगी, साइक्लोन आसानी है जो भी है, असनी है जो भी है, ठीक है। इस तरीके से पहले से ही सोच के गया था ये, ठीक है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा, देखो जैसे वो ब्रेक करते, सी दिस पैटर्न वी हैव लर्नड। तो सीखो ये चीज़ है, डोंट जस्ट रीड द टॉपर कॉपी। बहुत सारे लोग रीड हाँ बहुत कर रहे हैं, राइट, ब्लाइंड रीडिंग मत करें। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, यू नीड टू सी यार मैं वो पॉइंट्स रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ या नहीं। एंड अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो दोस्त, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन। एटलीस्ट अगर टॉपर ने यहाँ 7 से 10 पॉइंट लिखे हैं तो आप एटलीस्ट 3 से 4 तो करो रिप्रोड्यूस, बिकॉज रिप्रोड्यूसिंग, रिकॉलिंग दैट पॉइंट, दोज पॉइंट्स इन एग्जाम इज अ वेरी बिग चैलेंज। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव वेरी गुड नोट्स, ठीक है। अगर आपने नोट मेकिंग की आर्ट नहीं सीखी है, अगर आपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से नहीं बना रखा है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम यू विल बी हैविंग अ वेरी टफ टाइम। वो अंडर 100 वाली जो रैंकें आती है ना, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, उनका बिल्कुल सब सॉर्टेड होता है, ठीक है। एंड टॉपर्स कॉपी इज अ वेरी यू कैन से अंडर एस्टिमेटेड, इट्स नॉट हिडन, सबको पता है, बट इट्स अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड सोर्स। लिटरली आप टॉपर्स कॉपी के थ्रू आप अपना कंटेंट पूरा का पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपने आंसर पढ़ लिया, बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन, सी इसके अलावा आप कुछ पॉइंट सोच ही नहीं पा रहे हो, 4-5 पॉइंट इन्होंने यहाँ बता दिए, प्लस यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया, प्लस रीजन फॉर जो क्वेश्चन पूछा था वो बता दिया, एंड देन एक लाइन के अंदर यहाँ पे कंक्लूड भी कर दिया। अ वेरी यू कैन से गुड आंसर, आई वोंट से परफेक्ट आंसर क्योंकि देयर कैन ऑलवेज बी सम वैल्यू एडिशन, but still it's a very good answer which can be reproduced in those 7 to 8 minutes, ठीक है, राइट। हमेशा ध्यान रखिए आपको एट द एंड ऑफ द डे 7 से 8 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर इज दैट फर्स्ट आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, सेकंड आई नीड टू फाइंड आउट द पैटर्न्स व्हाट टॉपर्स आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इन एवरी आंसर्स, यू विल फाइंड जनरली देयर इज अ पैटर्न। थर्ड आई नीड टू लुक फॉर दोज की नोट्स, की इंट्रोडक्शन, की कंटेंट and write it down in my copy and try to reproduce them while I write the answer, right, ठीक है। and last but not the least, most important क्या है, is to learn all these things। learn करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग याद नहीं करते, पढ़ तो सब लेते हैं, हाँ टॉपर कॉपी पढ़ ली, बट टॉपर कॉपी से शॉर्ट नोट्स बनाना, टॉपर कॉपी से को अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके डिस्कस करना बहुत कम पीपल करते हैं, राइट। इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ PSI और ऑप्शनल जहाँ पे हम लोग टॉपर्स कॉपी को इसी तरीके से डिकोड कर रहे हैं, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, जस्ट गो टू civilsclub.in/learn, यू विल फाइंड द कोर्स एंड डू एनरोल इट।
चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय.